इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी खिताब कर रहे हैं। Are provided in Pakistan, many might willingly choose prison. The professor paused and said something I have never forgotten. He said, punishment is denial of freedom. Beyond that, the prisoner must not suffer. That remark, ladies and gentlemen, speaks directly of the issue that we are to deliberate upon today. Moving on to the next incident, which is not too long ago. After assuming office of the Chief Justice of Pakistan, in one of my visits, I visited the central jail of Dera Ismail Khan. While walking through the barracks, I spoke with a death row inmate who had been convicted to death, and I asked him a few questions which would normally be asked by an inspecting judge. I asked him, do you have clean drinking water? Do you have adequate food? Do you have access to health care? In response, he looked at me and without hesitation said, sir, I do not need food, water to drink, or health care. Please ensure that my death appeal pending in the court since 2017 is decided. Ladies and gentlemen, that was not an inmate addressing his Chief Justice. It was one human being asking the other whether the system responsible for his life had remembered him at all or had forgotten about him. You can imagine the impact it had on me. You'll be pleased to know, I will give you some positive information also, that when we embarked on this journey to address death appeals, we had cases pending of death appeals filed in 2015. And by the grace of God, we've been able to decide 606 cases, death appeals, till 30th of June 2026. Wait. You'll also be pleased to know that all cases filed prior to 31st of December 2025 have been decided, barring 3 cases which are fixed for Monday and Tuesday. 70 cases were filed after 1st of January 2026 till 30th, out of which 52 cases have been decided. We are left with 19. Very encouraging, but not enough. We have a long journey to go, but there is positive response coming from the courts. Now to why we are all together. Prisons, as we know, are constitutionally a provincial subject. The responsibility for prison administration rests with the provincial governments. The Constitution mandates that. This judiciary setting goals or extending or redefining the limits of prison facilities. What this gathering truly represents is an opportunity for the provincial governments to come together under one roof, by choice and by shared responsibility, to address the challenge that affects not only the prison administration, no, but the functioning and credibility of the criminal justice system as a whole. This effort, which transcends beyond political divide, deserves earnest commendation. I sincerely thank each one of you. There's no doubt about that. Ladies and gentlemen, over the course of my judicial career, I have come to understand
that the true measure of criminal justice system is not found solely in the courtroom or in judgments. If one wishes to assess whether the criminal justice system is functioning effectively, its strengths, its weaknesses, and the remedies required, one must look beyond statistics and just visit a prison. Prisons are the end point of the criminal justice process. They are the culmination of what commenced with the commission of that offense. How did the investigation proceed with the investigation? How did the prosecutors prosecute? How did the judiciary administer justice in coming to the conclusion? They expose the system's broader philosophies, its shortcomings, its abilities or inabilities to balance justice, public safety, and human dignity. As for judicial accountability is concerned, I do not stand here claiming that the criminal justice system is delivering perfectly. I'm not doing that. I'm very clear in that. We have judges duly conducting jail inspections, Criminal Justice Coordination Committee meeting regularly. But yet these mechanisms have not produced the outcome aligning with the urgency of the problem. We must acknowledge this plainly, because reform begins with honesty. But accountability does not rest on one institution alone. Criminal justice system functions in a chain. If one link is missing, the burden shifts to the other, and ultimately it leaves lasting scars on the prison. As institution in charge of the administration of criminal justice, we must all recognize that we are responsible for human lives, lives that matter, and lives that we are answerable for. As Chief Justice of Pakistan, who chairs the Apex Judicial Policy Making Committee, the NJPMC. Ladies and gentlemen, NJPMC is a policy-making body which has all the Chief Justices of Pakistan, of the High Courts, as members, and the chairman is the Chief Justice of Pakistan. That's where we sit down and we contemplate and decide and determine and recommend. It is a recommendatory body where we recommend what policy is to be adopted. Now, when I became the chairman of this committee, two fundamental issues had to be addressed. First, why, despite regular judicial inspections and statutory reporting system which were in place, cases continue to remain pending beyond reasonable period? Why? One. Two, why statutory grievance redressal mechanism within prisons are not functioning effectively, forcing inmates to seek relief from courts? The systems are there, everything is in place. There was a disconnect. What is that disconnect? Now, it was in this context that we decided that we should have a 3-member committee for each province. 2 parliamentarians, 1 from the opposition, 1 from the treasury, both having served time in prison, and 1 promising young lawyer to assist them as coordinators in their visits to jails and in recommending in drafting their recommendations. Well, visits were done, recommendations were filed, they reached the NJPMC. We passed them on to the provincial governments. We said, these are the recommendations. Please, it is up to you how you want to proceed with it. We identified the systemic issues which required to be addressed. I must acknowledge and thank not only the parliamentarians, but also the coordinators of the committee for each province in their time, insight, and commitment devoted to this cause. If I may, I want to name for the province of Balochistan, Ms. Shakir Bibi, Mr. Haroon Bilal Sharif, for the province of Khyber Pakhtunkhwa,
Ms. Aisha Bano for the province of Punjab, Ms. Amina Qadir for the province of Sindh, Ms. Haya Iman Zahid. Ladies and gentlemen, this conference for the first time has brought all provinces under one roof. Not to assign blame, but to accept shared responsibility. Ladies and gentlemen, it is very easy for the judiciary to point fingers at the executive, or for the executive to point fingers at the judiciary, or for one provincial government to point fingers at the other. No, we're not to do that. The National Prison Reform Action Plan represents a collective recognition that piecemeal efforts are not enough. What is required is concerted coordination and cohesive commitment. I urge every institution represented here to seriously attend to the pulse of the criminal justice system. That pulse, ladies and gentlemen, is found in our prison. Reform the prisons, the criminal justice system will reform itself. Ladies and gentlemen, I once again extend my sincere gratitude to each one of you for joining us today. Let us resolve that our criminal justice system remains grounded in human dignity and build a system for future generation to be proud of. Inshallah, Pakistan, Paindabad, thank you. Chief Justice Pakistan Supreme Court जस्टिस याहिया आफरीदी जेल इस्लाहात से मुताल्लिक़ कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस कॉन्फ्रेंस की ख़ास बात यह है कि चारों वज़राए आला खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब असम्बली के वज़राए आला इसमें शरीक थे। इसके अलावा वज़ीर क़ानून भी इसमें मौजूद थे। मुख्तलिफ़ अदलिया के जजेस भी यहाँ मौजूद थे। जेल इस्लाहात के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जानिब से इस कौमी कॉन्फ्रेंस के से खिताब किया गया। अहम खबर आपको देंगे। वज़ीर आज़म कल ईरान और तुर्की के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर आज़म ईरान में शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनई की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वफ़ाक़ी काबीना के दीगर वज़रा भी होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दोहा में ईरान और अमरीका ने आने वाले दिनों में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक किया है। अगली मुलाकात साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद जल्द अज जल्द तय की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तानी और कतरी सालिसों की दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों के साथ अलग अलग मुलाकातें हुई, जिसमें इस्लामाबाद वफ़ाहमती याददाश्त के पहलुओं से मुताल्लिक़ उमूर पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। तर्जुमान ने अफ़गान सरज़मीन के दहशतगर्दी के इस्तेमाल पर एक बार फिर तशवीश का इज़हार किया। पाक भारत अहम शख्सियात के दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म को लिखे गए ख़त के सवाल पर तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान न इसकी तौसीक़ कर रही है, न इस पर कोई तबसरा कर सकते हैं। तर्जुमान ने कहा कि भारत बैनुल-अक़वामी सालिसी और सिफारती रवाबित से गुरेज करता है, क्योंकि बाज़ अहम मामलात पर उसकी पोजीशन बैनुल-अक़वामी क़वानीन जांच पर पूरी नहीं उतरती। जम्मू कश्मीर, सरहदी आबी वसाइल और इंसदाद दहशतगर्दी जैसे मामलात पर भारत का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी कानून के तहत कमज़ोर है। पाकिस्तान किसी भी मुस्बत बैनुल-अक़वामी किरदार बशमूल अमरीका की जानिब से अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों का खैर मक़दम करेगा। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में ज़ेर तामीर इमारत की दीवार गिरने से 8 साला बच्चा जाम बहक हो गया है। क्या वाक़या पेश आया है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद फराज, तफसील बताइएगा प्लीज़। देखें, ये बागबानपुरा का इलाका है और यहाँ पर एक स्कूल के साथ एक ज़ेर तमीर एक घर था, जिसको तसीह देने के लिए वहाँ पर तमीर की जा रही थी। और तमीर के दौरान ही, काम के दौरान ही अचानक जो है वो इसकी पहले दीवार गिरी है और फिर छत गिर पड़ी है, जिसके बायस यहाँ पर जो काम कर रहे थे मजदूर 4 वो शदीद जख्मी हुए हैं। और गली में एक बच्चा गुजर रहा था, अब्दुल्ला उसका नाम बताया जाता है, वो जो है वो मलबा गिरने से उसकी हलाकत हो गई है। अभी यहाँ पर जिला इंतजामिया भी पहुंची है, पुलिस भी पहुंची है, रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पे पहुंची हुई है। अभी हमारी जो जिला इंतजामिया से बात हुई है, उनका ये कहना है कि ये जो स्कूल था गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर काम कर रहा था और रजिस्टर्ड भी नहीं है, और स्कूल की बिल्डिंग को एक्सटेंशन देने के लिए इसके बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग पर तामीराती काम जारी था और इसी काम के दौरान जो है वो छत गिरी है और ये वाकया पेश है। जिला इंतजामिया का ये भी कहना है कि स्कूल में बच्चों का कोई समर कैंप भी जो है वो गैर कानूनी तौर पर चलाया जा रहा था और अब रेस्क्यू का ये कहना है कि ऑपरेशन मुकम्मल करके इस साइट को मुकम्मल क्लियर कर दिया गया है। जी
बहुत शुक्रिया आपका अहमद फराज। लाहौर में होने वाले सानिया काहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भेज दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादा मलबा डालने से टी आयरन और गार्डर की छत गिरी, बच्चों के कमरे में मौजूदगी में छत पर मिट्टी डलवाना गफलत थी, कमज़ोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। हुकूमती जराये के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को भिजवाई गई रिपोर्ट में माहिरीन की राय भी शामिल की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि छत गिरने के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। बच्चों की अमवात सर पर ज़्यादा चोटें आने से हुई। ताहाल किसी मुताल्लिका सरकारी इदारे के किसी एहलकार की कोई गफलत नज़र नहीं आई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। यहाँ आपको अहम खबर दें, एमक्यूएम ने बल्दियाती आईनी तरमीम पर सियासी जमातों में इत्तेफाक राय के लिए कमेटी के 4 नाम फाइनल कर लिए हैं। किरण खान नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, कौन कौन शामिल है कमेटी में? जी बिल्कुल, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से अपनी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम जो कि बल्दियाती हुकूमतों के हवाले से है, उस पर जो कमेटी कायम करने का वज़ीर आज़म ने हालिया जो मुलाकात हुई थी एमक्यूएम के वफ़द के साथ, उसमें जो हिदायत की थी, उसके लिए 4 नाम जो है अपनी पार्टी की तरफ से फाइनल किए हैं, जिसमें डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीनुल हक, मुस्तफ़ा कमाल और ये लोग जो है वो शामिल हैं। इसके साथ जावेद हनीफ भी जो है वो कमेटी का हिस्सा होंगे। ये नाम 1 से 2 दिन में एमक्यूएम की जानिब से बाकायदा तौर पर हुकूमत को दे दिए जाएंगे। इसी तरह मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी 4 नाम जो हैं वो कमेटी के लिए आएंगे, जिसके बाद बाकायदा तौर पर कमेटी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा। उसके साथ साथ एमक्यूएम की जानिब से जो इनके लापता कारकुनान की बाजियाबी के लिए कमेटी कायम की जाएगी, उसके लिए भी नाम फाइनल किए गए हैं, जिसमें अमीनुल हक और निगर शकील और साबिर जो है वो इसमें शामिल हैं और उनके नाम भी बहुत जल्द हुकूमत को दे दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। गिलगित बल्तिस्तान के जिला ध्यामर में मूसलाधार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। सैलाब से राब्ता सड़कें बह गई हैं। मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। मकानात, बागात, फसलें और ज़राई अराज़ी को शदीद नुकसान पहुँचा है। मुतासरीन ने हुकूमत से फौरी इमदाद, सड़कों की बहाली और मुस्तकिल हिफाजती इक़दाम का मुतालबा किया है। चित्राल के इलाकों बरोज़ और कोड़गोलदा में रेलों से मकानात और दुकानों को शदीद नुकसान पहुँचा है। नाहरान में सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने और वायरल होने के लिए डबल केबिन गाड़ी के साथ दरियाए कुन्हार में जाने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। 4 अफराद डबल केबिन गाड़ी के जरिए दरियाए कुन्हार अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी तौर पर 4 अफराद को बचाया, लेकिन गाड़ी दरिया में डूब गई, जिसे बाद में निकाल लिया गया। DSP के मुताबिक दरियाए कुन्हार में वीडियो बनाने वाले गाड़ी ले जाने वाले 4 अफराद के खिलाफ दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज, जबकि गाड़ी दरिया से निकाल कर जब्त कर ली गई। गिरफ्तार किए गए 4 अफराद शेखुपुरा के रिहायशी हैं, जो नाहरान घूमने आए थे और डबल केबिन गाड़ी के जरिए दरियाए कुन्हार अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। दरिया के बीच गाड़ी डूबने के बाद मकामी राफ्टिंग टीम ने 4 को बचा लिया था। स्वात की सैफुल्ला झील में कश्ती डूबने से जाँ बहक एक ही फैमिली के 6 अफराद की मैयतें लाहौर पहुंचा दी गई हैं। 24 साल खातून को अभी तक तलाश नहीं किया जा सका। खातून 5 रोज़ कबल अमेरिका से डिग्री लेकर पाकिस्तान आई थी। तमाम अफराद इस्लामाबाद सफारत खाने वीज़े लगवाने गए थे, वहाँ से स्वात चले गए। रावलपिंडी में कैदी वैन से फरार मजीद 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर, अब तक कितने गिरफ्तार हो चुके हैं फरार होने वाले कैदी? जी वजी, रावलपिंडी की तहसील कहोटा से वापसी पर जो कैदी फरार हो गए थे कैदी वैन से, उनमें से मजमूई तौर पर अब तक 11 कैदी जो है वो गिरफ्तार किए गए हैं। गुज़श्ता रोज 3 कैदियों को गिरफ्तार किया गया था और आज सुबह एक कैदी को गिरफ्तार किया गया और अब से थोड़ी देर कबल
3 मजीद कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। अब 3 कैदी जो है वो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ताहम 11 कैदी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम जो गिरफ्तार कैदी हैं उनको इस्लामाबाद पुलिस के हवाले किया गया है और मजीद 3 कैदियों की तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया आपका शबीर डार। वादी क्वेटा इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। 21 साल पुराना रिकॉर्ड गुज़िश्ता रोज टूट गया है। क्वेटा से राशिद सईद तफसील बताएंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता मंगल को कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 4 जून 2005 में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था, जबकि जुलाई 1998 में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा था, जो अब तक शहर में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत का रिकॉर्ड है। अब तक माह अगस्त का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत का रिकॉर्ड 1970 में 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। 11 मई 2000 में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.4 और 1 सितंबर 1970 को 38.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। महकमा मौसमियात के मुताबिक जुलाई के वस्त से दर्जा हरारत मजीद बढ़ने का इम्कान है। राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में छत गिरने से एक राहगीर बच्चा जाँ बहक हुआ था। 4 मजदूरों को जो जख्मी हुए थे सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ज़ेर तामीर मकान के साथ स्कूल में लगे समर कैंप में बच्चे मौजूद थे और पहले दीवार गिरी और दीवार गिरने से मकान की छत भी गिर गई। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में मुदाखलत से अमेरिका को खबरदार कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज ने मुतनब्बिह किया है कि आबनाए हुर्मुज़ में अमेरिका की किसी भी किस्म की मुदाखलत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ के अतराफ़ अमरीकी फ़ज़ाई असासों की मुसलसल मौजूदगी खित्ते की सलामती के लिए ख़तरा है। ईरानी फ़ौज का कहना है कि तमाम कमर्शल जहाज़, ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ में महफूज रास्ते के लिए ईरान के बताए गए रूट्स को फॉलो करें। मुकर्ररा रास्तों के इन्हिराफ या बाहरी नकलो हरकत के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की सूरत में फ़ौजी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की शहादत सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि एक नए बाब का आगाज़ है। शहीद सुप्रीम लीडर की विरासत और पैगाम हमेशा रहेगा। ईरानी सदर ने नमाज जनाजा से कबल जारी पैगाम में कहा कि ईरान का मुस्तक़बिल कौमी इत्तेहाद के ज़रिए ही महफूज बनाया जा सकता है।